A very cheerful good morning, class 6th. Students, welcome back in your science class. So in the previous video, we have started chapter 7 and we have discussed about the trees, herbs, shrubs, climbers and creepers. Now students, as I told you in the earlier video, now we have to discuss about the part of the plant. And as you all can see that we have discussed in the previous class that first of all we have to start with the shoot system. I told you that shoot system consists basically three parts, the one stem, the second leaf and the third one is flower. So first of all these words are very familiar to you. आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है stem क्या होता है, leaf क्या होती है या flower क्या होता है. But now we have to know about their basic functions, okay? और कुछ इनकी structures के बारे में भी हम बात करेंगे. So the first part is stem. I know it's very familiar to you. Every one of you know about the stem. What is the function of stem? The main function of stem is to hold the plant upright and erect. सबसे पहले plant को सीधा और erect रखता है. The second thing is that it bear leaves, fruit and flower. कि जितने भी लीव्स फ्रूट और फ्लावर होते हैं सब स्टेम पे ही लगता है. नाउ एज यू ऑल कैन सी इन द स्लाइड देयर आर टू डिफरेंट वर्ड, द जाइलम एंड द फ्लोएम. राइट नाउ द वर्ड्स आर वेरी डिफरेंट टू यू, बट स्टूडेंट्स यू हैव टू बी फैमिलियर विद दीज वर्ड्स बिकॉज नाउ इन एवरी क्लास you get to know these words again and again. बार बार ये वाले जो words है xylem और phloem आप बार बार पढ़ेंगे. So what is the xylem and what is the phloem? Okay, so xylem are some small tubes present inside the stem. xylem क्या होती है? कुछ छोटी ट्यूब्स होती हैं या we can say कुछ some special tubes होती है stem के अंदर. क्या काम होता है इनका काम होता है that they carry water and mineral from the soil to the different part of plant. कि आप लोगों को पता है हम लोग पानी कहाँ देते हैं? पानी हम रूट को देते हैं या सॉइल में बेसिकली. तो ये क्या करती है? सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करती है और प्लांट के जितने भी पार्ट है, इट विल बी स्टेम, इट विल बी लीफ और व्हाटएवर, वहां तक ये क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करते हैं. क्या हुआ? Xylem are the special cells or special tubes which is present inside the stem. And what is their function? And their function is to carry water and minerals from the soil to the different part of plant. क्या करते हैं ये? वाटर एंड मिनरल्स लेके सॉइल से और जितने भी डिफरेंट पार्ट होता है प्लांट के उन तक कंडक्ट करते हैं. एंड द फ्लोएम इज जस्ट अपोजिट. व्हाट इज द फ्लोएम? दिस इज ऑल्सो द स्पेशल ट्यूब प्रेजेंट इनसाइड द स्टेम, बट they carry food prepared in the leaves to the different part of plant. आप लोगों को सबको पता है कि फूड जो होता है प्लांट का लीफ में बनता है by the process of photosynthesis. अब जो लीफ में फ्रूट जो फूड बना है, how they will pass to the whole plant, क्योंकि फूड की जरूरत तो पूरे प्लांट को है, स्टेम को भी है, रूट को भी है. तो क्या करते हैं फ्लोएम? क्या करते हैं? लीफ से फूड को लेते हैं और जितने भी पार्ट के प्लांट है उसके अंदर क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. सो दीज आर द xylem and phloem. What is xylem? Xylem are special cells present in stem which can carry water and mineral from the soil to the different part of plant, and phloem are also special tubes present inside the stem, but they carry food prepared in the leaf to the different part of plant. I hope now these both terms are clear to you. Students, as you all can see in slide के xylem क्या कर रहे हैं? देखो नीचे से ऊपर कुछ ब्लू कलर की लाइन आपको जाती दिख रही है. तो बेसिकली xylem क्या कर रहा है? xylem क्या कर रहा है? यहाँ से रूट से क्या ले रहा है? वाटर ले रहा है और उसको ऊपर की तरफ क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है. Root will absorb water and mineral from soil and then xylem will take it and conduct it to the other part of plant. इसमें भी सेम चीजें दिख रही है. xylem transport of water and mineral from soil to other part of plant, whereas phloem transport food from the leaf to the other part of plant. सेम जो भी आपको मैम ने बताया ही है. और इस डायग्राम में उस वाले डायग्राम का अपोजिट दिख रहा है. इसमें जो ब्लू लाइन से नीचे दिख रही है, क्या हो रहा है? लीफ से फूड बन रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और बाद में वो फूड कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है. किसके थ्रू जा रहा है? बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम. Okay, now we have to show a experiment by which we have to show that stem conduct water. हमें बताना है स्टेम क्या करता है? वाटर कंडक्ट करता है. तो क्या हुआ? हमने ग्लास लिया, ग्लास को हमने 1/3 वाटर से फिल कर लिया
और उसके अंदर हमने क्या किया, कुछ ड्रॉप्स डाल दी इंक की। अब हमने क्या किया, इंक की ड्रॉप वाटर में डालने के बाद हमने एक प्लांट का स्टेम लिया, उसको बेस से क्या कर दिया, कट करके उसके अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया। कौन से वाटर के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या डाला था, इंक। हम कुछ टाइम बाद क्या देखेंगे कि जो प्लांट की फ्लावर का कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। क्या किया, टेक अ ग्लास एंड फिल इट 1/3 ऑफ वाटर, add a few drop of ink inside the water, cut the base of stem of the herb and put it in the glass. Observe it next day. समझ में आ गया? वाटर लिया 1/3 ग्लास, उसमें इंक डाला, उसके अंदर बेस से स्टेम को कट करते हुए एक हर्ब डाल दी। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद अब देखोगे तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद नेक्स्ट डे 2 to 3 days कि जो फ्लावर का कलर है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो गया फ्लावर का कलर, यू कैन सी दिस कि व्हाइट रोज का स्टेम था। अब क्या हुआ, व्हाइट रोज का जो स्टेम था वो थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर के अंदर ऐसे कन्वर्ट होने लग गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो स्टेम था वो क्या कर रहा था, वाटर का कंडक्शन कर रहा था। वाटर का कंडक्शन नीचे से ऊपर हुआ तो जो फ्लावर का कलर है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आप देखिए, फर्स्ट आपको व्हाइट रोज दिख रहा है स्टेम में, सेकंड में क्या है, ब्लू इंक डाल दी तो कलर भी क्या हो गया, ब्लू। इसके अंदर रेड इंक डालते तो थोड़ा सा कलर हमें कैसा दिखता, रेडिश सा दिखता। बिकॉज व्हाई, बिकॉज वी न्यू दैट देयर आर सम स्पेसिफिक सेल विच कैन ट्रांसपोर्ट द वाटर। और वो जो वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इससे हमें क्या शो हो रहा है कि कलर चेंज हो गया। आप पहले वाली स्लाइड देखिए, हमें क्या करना था, स्टेम वाटर कंडक्ट कर रहा है, यही शो करना था। अब जब स्टेम ने वाटर कंडक्ट किया तो वाटर कंडक्ट में वाटर का कलर आ गया, वाटर का कलर यहाँ पे ब्लू था, तो वाटर का कलर ब्लू होने से क्या हो गया, वाटर का कलर ब्लू होने से ये जो स्टेम, जो रोज है इसका कलर भी क्या हो गया, ब्लू हो गया। आई होप दिस एक्टिविटी इज क्लियर टू यू। नाउ द सेकेंड पार्ट इज लीफ। स्टूडेंट्स, जो लीफ होती है इसके लिए क्या होता है, आप डायग्राम देख रहे हो, आपको 2 पार्ट दिख रहा है। एक दिख रहा है लीफ का वो पार्ट जो ब्रॉड है बिल्कुल, है ना, ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं लैमिना। एंड द सेकेंड पार्ट इज पीटियोल। पीटियोल क्या है, वो पार्ट जो कि स्टेम से लीफ को जोड़ रहा है। जैसे ये स्टेम है और ये लीफ है, तो जहां से ये जुड़ रही है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड पीटियोल, और वो जो पूरी लीफ है इट्स कॉल्ड द लैमिना। तो लीव्स के लिए क्या होता है, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना, and the second, the part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole. ये attach वाला part तो क्या हो गया, petiole हो गया, और ये leaf क्या हो गई, पूरी lamina हो गई। I hope this is clear to you students. Now the small lines present on a leaves are called veins, or the midline is called the midrib. A thick vein in the middle of the leaf is called midrib. आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम में एक लाइन तो बीच में है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, इसको तो बोलते हैं मिडरिब, और साइड की जो ऐसे ऐसे लाइंस है इनको बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं, बीच की लाइन हो गई मिडरिब, और साइड की जो लाइंस होती है इनको हम बोलते हैं वेन। आई होप द वेन एंड मिडरिब इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। डायग्राम में आप क्लियर देखिए, पीटियोल कौन सा पार्ट हो गया जो स्टेम को जोड़ रहा है, मिडरिब कौन सी हो गई जो बीच की एक लंबी सी लाइन है, और साइड वाली जो लाइन है ये हो गई वेन, और लैमिना क्या हो गई जो पूरी लीफ की स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या बोल दिया, लैमिना। नाउ द लीफ वेनेशन। द पैटर्न्स ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेनेशन, द वन इज रेटिक्यूलेट एंड द वन इज पैरेलल। वेनेशन क्या है कि जो वेन्स है वो लीफ पे किस तरह से प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं वेनेशन। द पैटर्न्स ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता रही हूँ वेनेशन कैसे होता है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने घर की लीव्स, अपने घर में प्लांट्स की लीव्स देखेंगे और उसमें से आप खुद डिसाइड करेंगे कि रेटिकुलेट कौन सी है और पैरेलल कौन सी है, रेटिकुलेट कौन सी है और पैरेलल कौन सी है। तो लीफ वेनेशन में क्या हुआ, 2 तरह का हो गया, रेटिकुलेट और वेनेशन। रेटिकुलेट में क्या होता है, अगर जो वेन्स है उनका जो डिजाइन है वो नेट लाइक है, मतलब एक तो आपने लीफ देखी जिसमें ऐसे 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 होती है, एक लीफ क्या होती है जिसमें वेन्स का जाल बन जाता है, जैसे आपने पीपल या मैंगो का ट्री देखा होगा, वो क्या बनती है, पूरी एक जाल सा बन जाता है लीफ में वेन्स का, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। आप लोग बाहर जाइए, लीफ देखिए अपने घर में, आपको आराम से दिख जाएगा रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। और जब क्या होता है, जो वेन्स का डिजाइन होता है वो ऐसे 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 होता है। देखिए आप जो फर्स्ट लीफ दिख रही है ना आपको 7.1 में, इसमें आपको मिडरिब दिख रही है और क्या दिख रहा है कि जाल बन जाएगा, ये जाल इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा। आप लोग क्या करोगे, अपने घर पे देखना,
लीफ आपको दिखेंगी जिसमें क्या होता है, बहुत, आप पीपल का पेड़ तो आपके सबने देखा होगा, उसके अंदर क्या होता है, या रोज की लीफ आप सबने देखी है, ऐसे 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 लीफ नहीं होती। अपन डायग्राम भी कभी कभी लीफ का बनाते हैं, तो कभी तो हम लीफ को करके ऐसे 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 बना देते हैं, और कई बार हम क्या करते हैं, एक ही रो से बहुत सारी निकाल देता है। तो रेटिकुलेट क्या होता है, जब वो जाल सा बन जाता है, और पैरेलल क्या होता है, जब ऐसे 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 इस तरह का वेनेशन होता है, जैसे ग्रास, मेज, बनाना, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। I hope the reticulate and parallel venation is clear to you students, but kindly check it at your house। देखिए आप लोग इसमें देखिए क्या हो रहा है, इस तरह से वेनेशन हो रहा है, 1 2 1 2, ये सारा पैरेलल है ये। जबकि जो रेटिकुलेट होता है उसके अंदर कैसा होता है कि जाल बन जाता है, ऐसे 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 लाइन नहीं आती। I hope this is clear to you students, and this is enough for today's class। We will discuss it whenever our live class will be there. So students, now be safe, be at your home, and kindly do your homework and submit your homework on time. This is my humble request to you, that do your homework and submit your homework on time. Bye bye.